Well, hello everyone. So in the last lecture, we have completed the input and output scenario. For output stream, we can use the printf function to display some message. Like in the printf function, on the double quote, we write anything, and that will be turn out into our output screen. Similarly, if I want to pass the data, if I want the application field where the user can send the data, user can able to put the data. So in that case means user ने input देना चाहिए, ऐसा scene मुझे चाहिए. So in that case we can use the scanf function. Or in the printf function, if we use the percentage sign along with character, and that character is not the random character with the specific meaning character, like for integer we use the percentage d, for character percentage c, and so on. So we can get that uh, user inputted value and print on the user screen, on the output screen. Okay, so now next concept is our formatted input and output. Okay, so देखते क्या है formatted input output अपने C programming में. Okay, so see here, the second paragraph will tells us C provides standard functions for input and output respectively scanf and printf. Okay, scan मतलब मैं value get कर रहा हूँ, f मतलब function. Okay, for performing formatted input and output, these functions accept as parameters a format specification string and a list of variables. Means if we want to pass the formatted input output, uh, before this we simply pass the input and output values. Now if I want to pass the formatted input and output values, then these functions accept, means this scanf and printf function accepts as a parameters a formal specification string and a list of variables. कैसे वो देखते हैं. The format specification string is a character string that specifies the data type of each variable to be input or output and the size or width of the input and output. ओके, तो देखते हैं कि ये अभी प्रॉपर डेफिनेशन वाला पार्ट देखा, अभी देखते हैं एक्चुअल में वो कैसे होता है. ठीक है, सो द फंक्शन printf फॉर्मेटेड आउटपुट देखते हैं पहले. जैसे कि पहले हम लोग ने आउटपुट ही देखा printf, सिमिलरली अभी उसके बाद इनपुट देखा scanf. सिमिलरली पहले फॉर्मेटेड आउटपुट देखते हैं, उसके बाद फॉर्मेटेड इनपुट. ओके, सो द फंक्शन printf is used for formatted output to standard output based on a format specification. ओके, सो हम लोग कुछ नया नहीं कर रहे, printf फंक्शन ही यूज कर रहे लाइन के हिसाब से फॉर फॉर्मेटेड आउटपुट. ओके, टू स्टैंडर्ड आउटपुट, फॉर्मेटेड आउटपुट टू स्टैंडर्ड आउटपुट बेस्ड ऑन फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन. मतलब यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन यूज करके हम लोग फॉर्मेटेड आउटपुट जनरेट कर रहे फ्रॉम स्टैंडर्ड आउटपुट. समझ में आ रहा है? फॉर्मेटेड आउटपुट क्या होता है वो देख लेते पहले. तो फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन स्ट्रिंग, अभी ये फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन क्या है? एक फॉर्मेट मतलब एक ढांचा, एक सैंपल. ओके, वो सैंपल के स्पेसिफिकेशन, वो सैंपल जनरेट करने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है वो उसके स्पेसिफिकेशन. ओके, सो द फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन स्ट्रिंग अलोंग विद द डेटा टू बी आउटपुट, मतलब वो फॉर्मेट चाहिए और जो डेटा मुझे आउटपुट में डिस्प्ले, जो मुझे ऐसा लगता है कि आउटपुट में डिस्प्ले हो डेटा, along with the formatted input, sorry, formatted output string, I want that data जो मुझे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आउटपुट के तौर पर, are the parameters to the printf function. okay? मतलब क्या, अगर मैं printf function में एक फॉर्मेट पास कर रहा हूँ और आउटपुट डेटा पास कर रहा हूँ, सो दैट विल बी अवर फॉर्मेटेड आउटपुट. मतलब एक फॉर्मेट मैंने जनरेट किया, जैसे कि क्या बोल सकते हैं हम लोग, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद होम पेज आए, ये एक फॉर्मेटेड आउटपुट है. फॉर्मेट क्या है? यू वांट टू एंटर, you need to enter valid username and valid password, and whenever you click on the login button you will get that uh, appropriate home page of that individual login. ठीक है, सो ये क्या है? फॉर्मेटेड आउटपुट है. मैंने कुछ तो फॉर्मेट डिजाइन किया है, अगर वैलिड में इनपुट दे रहा हूँ और आउटपुट के सेट भी है मेरे पास, मतलब होम पेज ऑलरेडी है मेरे पास, वो मैं सिर्फ डिस्प्ले कर रहा हूँ. सो वो मेरा हो गया आउटपुट डेटा. यहाँ पे देखो सिंटैक्स उन लोग ने दिया है, printf
उसके बाद फॉर्मेट, और उसके बाद जो डेटा रिक्वायर्ड है, डेटा 1 डेटा 2 अप टू जितना रहेगा उतना। ओके, इन दिस सिंटैक्स फॉर्मेट इज द फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन स्ट्रिंग। ओके, मतलब फॉर्मेट जो है वहां पे क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन स्ट्रिंग है। इट कंटेन्स फॉर ईच वेरिएबल टू बी आउटपुट, हर एक वेरिएबल के आउटपुट में कौन सा स्ट्रिंग, मतलब कौन सा वेरिएबल, सॉरी आउटपुट के हिसाब से कौन सा वेरिएबल होना चाहिए वो कंटेन कर रहा है स्ट्रिंग। अ स्पेसिफिकेशन बिगिनिंग विद द परसेंटेज सिंबल फॉलोड बाय अ कैरेक्टर कॉल्ड द कन्वर्जन कैरेक्टर। जो कन्वर्जन कैरेक्टर हम लोग यूज करते हैं ना, परसेंटेज डी, परसेंटेज सी, वो वहां पे आने वाला है फॉर्मेट में, ठीक है। और उसके बाद डेटा आने वाला है। सो फॉर्मेटेड आउटपुट ये हम लोग एज अ कन्वीनियंस ऑफ इनपुट ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। देखो एग्जांपल दिया है नीचे, प्रिंटफ परसेंटेज सी कॉमा डेटा 1, ठीक है। अभी क्या किया हम लोग ने, ये चीज हम लोग स्कैनएफ में कर रहे थे, यही हम लोग ने अभी प्रिंटफ में किया है। देखते क्या है वो, द कैरेक्टर स्पेसिफाइड आफ्टर परसेंटेज। ओके, मतलब परसेंटेज के बाद जो कैरेक्टर मैंने लिखा है इज कॉल्ड कन्वर्जन कैरेक्टर, ठीक है। सो हम लोग इसे क्या बोलने वाले, कन्वर्जन कैरेक्टर। तो परसेंटेज सी क्या हुआ, सी क्या हुआ मेरा, कन्वर्जन कैरेक्टर जो अलोंग विथ परसेंटेज साइन आ रहा है। ओके, बिकॉज इट अलाउज वन डेटा टाइप टू बी कन्वर्टेड टू अनदर डेटा टाइप एंड प्रिंटेड। सो ये क्या कर रहा है, एक डेटा टाइप को बोल रहा है कि दूसरे डेटा टाइप में आप कन्वर्ट कर सकते हो। सी द फॉलोइंग कन्वर्जन, ये तो आपको मालूम है कि डी इंटीजर के लिए, सी कैरेक्टर के लिए, स्ट्रिंग के लिए, एफ डबल के लिए। ओके, सिंबल्स एंड मीनिंग। ओके, यहाँ पे हम लोग ने दिया है स्लैश इन मतलब न्यू लाइन, ये भी हम लोग ने देखा था। स्लैश टी मतलब टैब, 8 स्पेसेस, टैब जो अपना रहता है नॉर्मल कंप्यूटर का टैब जो यूज करते हैं हम लोग, वो 8 स्पेसेस के लिए हम लोग टैब यूज करेंगे स्लैश टी थ्रू। ओके, यहाँ पे देखो उन लोग ने एग्जाम्पल दिया है, परसेंटेज सी स्लैश एन डेटा 1, सो द फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन स्ट्रिंग में ऑल्सो हैव टेक्स्ट। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, printf कैरेक्टर इज परसेंटेज सी स्लैश एन डेटा 1, द टेक्स्ट कैरेक्टर इज, मतलब कैरेक्टर इज में मैं पास कर सकता हूँ, अभी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज सी है ना। ओके, इज प्रिंटेड आउट अलॉन्ग विद द वैल्यू ऑफ डेटा 1, सो जो डेटा 1 की वैल्यू है उसके साथ वो प्रिंट होने वाला है। ओके, एक अभी प्रॉपर एक प्रोग्राम देखते हैं उसका, ठीक है। ये देखो, हैश इंक्लूड stdout.h। ओके, अभी यहाँ पे एक नया हेडर फाइल आपको दिखाई दे रहा है जो हम लोग यूज करने वाले हैं अपने प्रोग्रामिंग टर्मिनल में, जो है हैश इंक्लूड conio.h। इट इज यूज्ड फॉर आईओ, मतलब तो आपको पता ही है, ऊपर आईओ की यूज करते हैं हम लोग इनपुट आउटपुट के लिए, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ओके, सिमिलरली कोनियो हम लोग यूज करने वाले कॉन्कैटिनेशन ऑफ इनपुट आउटपुट, मतलब जो ये हमें लिखना है क्योंकि हम लोग कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। कॉन्कैटिनेशन मतलब कंबाइन करना और डिस्प्ले करना। सो कभी कभी है ना टर्मिनल पे एरर दिखाए, आपका प्रोग्राम रन होगा, कंपाइल करने के बाद प्रोग्राम रन नहीं होगा, प्रोग्राम कंपाइल होगा और रन नहीं होगा। क्यों? ड्यू टू दिस मिसिंग ऑफ हेडर फाइल conio.h। सो ये लिखना है, ठीक है। ओके, अभी उसके बाद लिखा है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन, अभी देखो क्या लिखा है प्रोग्राम, कैरेक्टर मैंने देखो 1 2 3, लाइन नंबर 5 6 7, 3 मैंने वेरिएबल जनरेट किए हैं। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। आई एम जनरेटिंग 3 वेरिएबल्स नेम्ड एज alpha abh, number 1 and number 2. Okay, in the alpha abh the data type of the variable is character, number 1 का है int, number 2 का है float. Okay, value of alpha abh is equal to 1, sorry is equal to a, नंबर 1 की वैल्यू है 55, नंबर 2 की वैल्यू है 22.34। ओके, और नेक्स्ट 3 लाइन में मैंने सिंपली प्रिंट किया है, फॉर्मेटेड आउटपुट मैंने यूज किया है, फॉर्मेटेड आउट जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि हम लोग वो कैसे यूज कर सकते हैं। फॉर्मेटेड आउटपुट वाला कंसेप्ट हमारा ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो देखो कैरेक्टर इज इक्वल टू मतलब क्या, मैं प्रिंटफ को यूज कर रहा हूँ बतौर स्कैनफ, क्योंकि ये काम स्कैनफ का है ना, परसेंटेज सी स्लैश एन, ये काम स्कैनफ का है। बट मैं अभी इसके लिए भी है ना, स्कैनफ में क्या था, स्कैनफ में मैं वैल्यू एंटर कर सकता हूँ, मतलब अल्फा एच, ये ए वैल्यू पहले से ही प्रोग्राम में प्रेजेंट है। बट सपोज मुझे मतलब यूजर के मोड पे छोड़ देना है, वो ए एंटर कर सकता है, जेड एंटर कर सकता है, बी एंटर कर सकता है, एच एंटर कर सकता है, वट एवर ही वॉन्ट्स। सो उसके लिए मैं स्कैनफ यूज करूंगा। बट प्रिंटफ, फॉर्मेटेड प्रिंटफ क्या करेगा, इफ द वैल्यू इज ऑलरेडी प्रेजेंट, यूजिंग दिस फॉर्मेटेड प्रिंटफ आउटपुट वी कैन see this value in our character in our outputted stream.
सो कैरेक्टर इज इक्वल टू क्या आने वाला है, %c। भी वो स्कैन करेगा %c, मतलब क्या, कैरेक्टर है, ओके। और उस कैरेक्टर की वैल्यू क्या है, a है, ओके। सो a वहाँ पे डिस्प्ले होने वाला है, देखो कैरेक्टर a। ये देखो आपका जो टर्बो सी है ना, वो ऐसे दिखने वाला है। यहाँ पे आप लोग प्रोग्राम करने वाले हो, ऐसे प्रोग्राम करने वाले हो, आप लोग ने देखा भी होगा, मैंने प्रैक्टिकल भेजे। सो ऐसे अभी ऑनलाइन के मोड पे हम लोग प्रैक्टिकली नहीं कर सकते प्रोग्राम, बट ठीक है, बहुत सारे जन ने इंस्टॉल किया होगा, प्रैक्टिस कर रहे होगे, वेल एंड गुड, ओके। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी कैरेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, ए। सेकेंड क्या है, %d, इंट %d, तो उसकी वैल्यू 55 वो आ गई। और स्लैश इन मतलब ये नए नए लाइन पे आ रहे हैं, तो फिर ये एक ही लाइन पे सब तीनों आ जाते हैं, ठीक है। और परसेंटेज है, तो तीनों की वैल्यू आ रही है, ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे भी आउटपुट दिया है, यहाँ पे गेट चेंज लिखा है और रिटर्न 0 लिखा है। गेट चेंज मीन्स गेट कैरेक्टर, ओके। गेट कैरेक्टर फंक्शन हम लोग कोनियो के टाइम पे लिखना ही है मुझे, अगर मैं कोनियो डिक्लेयर कर रहा हूँ ना, तो मुझे गेट चेंज लिखना ही है, ठीक है। कॉन्केटिनेशन जब मैं कर रहा हूँ, तो ये फंक्शन मुझे लिखना ही है आउटपुट के लिए। और ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब आप लोग ने एक बार ट्राई किया, आप लोग ने सपोज एक बार ये रन किया प्रोग्राम, सेकेंड टाइप आप लोग ने ए के बजाय बी लिखा, ठीक है। सो वो ये भी आएगा और नीचे दूसरा बी वाला वैल्यू आएगा। थर्ड टाइम आपने सी किया, तो सी मतलब ये क्लियर नहीं हो रहा है, तो वो क्लियर करने के लिए, आउटपुट स्क्रीन क्लियर करने के लिए मैं ये फंक्शन लिखने वाला हूँ, CLR इट स्टैंड्स फॉर क्लियर स्क्रीन, CLR क्लियर SCR स्क्रीन, ठीक है। नॉट अ बिग डील, ऑप्शनल पार्ट है वो, ठीक है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द स्टेटमेंट, सो आपको पता चल गया कि वो कैसे आ रहा है आउटपुट, यही उन लोग ने एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है। नाउ formatted input, okay. So the function scanf is used for formatted input from standard input and provides many of the conversion facilities of the function printf। जैसे कि printf हम लोग बतौर scanf यूज कर रहे थे, वैसे अभी scanf बतौर printf यूज करने वाले हैं, ठीक है, ओके। मतलब ये scanf का डिक्लेरेशन जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था, कुछ अलग नहीं, बात नहीं है इसमें। फॉर्मेटेड में सिर्फ हम लोग देख रहे हैं कि वो कैसे हम लोग अलग अलग वे से यूज कर सकते हैं, लास्ट लेक्चर में भी देखा था, बट ठीक है। Syntax: the function scanf reads and converts characters from the standards input depending on the format। जो stdio है उसके हिसाब से वो वैल्यू स्कैन कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो %c %d, तो %c क्या है, कैरेक्टर वैल्यू है जो मैं यहाँ पे नेम में पास कर सकता हूँ। एड्रेस मतलब हम लोग वो कहाँ पे स्टोर है, ये हम लोग कहाँ पे स्टोर करना है। द डेटा नेम इज नॉट प्रिसीडेड बाय द कैरेक्टर एम्परसेंड, ओके। सो डेटा नेम ये एम्परसेंड से मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बोलना है कि वो कहाँ पे स्टोर है, ठीक है। और रोल नंबर क्या है, इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। देखते प्रोग्राम में, देखते डायरेक्टली, तो बहुत सारे अपने डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो प्रोग्राम दिया अभी, ये हेडर फाइल सबको पता है, मेन फंक्शन क्या है पता है, रिटर्न 0 क्या है पता है, ठीक है। सो इतना मेरा प्रोग्राम का फ्लो है, इतना मेरे प्रोग्राम कंसिस्ट कर रहा है, तो वो देखते क्या मैंने क्या किया। देखो ई नम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया, अभी अंडरस्कोर अलाउड है वेरिएबल में, ये हम लोग ने देखा है रूल्स उसके, ठीक है। ई नम नाम का वेरिएबल क्रिएट किया जिसका डेटा टाइप है इंटीजर। उसके बाद EWT किया जिसका है फ्लोट। मैंने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट दिया है और कुछ नहीं किया, तो वो सिंपली प्रिंट होने वाला है, एंटर द एलिमेंट नंबर एंड वेट ऑफ अ प्रोटॉन, ठीक है। उसके बाद नीचे ये स्कैन किया मैंने, तो यहाँ पे मैं एंटर कर सकता हूँ कौन सी वैल्यू, %d मतलब इंटीजर वैल्यू, ये वाली नंबर डाला 33, यहाँ पे देखो। और यहाँ पे %f मतलब फ्लोट वैल्यू 33.2 डाल सकता था मैं, इसमें 33 लिखा, चलेगा, ओके। द एलिमेंट नंबर इज, अभी जो 33 एंटर किया है वही मैं मुझे देखना है कि वो %d की वैल्यू क्या थी, इज enum, ओके। enum क्यों, %d इंटीजर है ना, सो यहाँ पे देखो 33.00 दिखाई दे रहा है, ओके। एंड सेकेंड क्या है, प्रोटॉन वैल्यू, उसके लिए मैंने क्या किया, EWT क्या है मेरा, %f, देखो ना यहाँ पे मैंने स्कैन किया, एड्रेस ऑफ enum %d में पहला और %f EWT में, ठीक है। तो ये दोनों की वैल्यू यहाँ मैंने डाली है 33, सो वो मुझे वहाँ पे दिखाई दे रही है, समझ में आ गया, ओके। सो ये इतना इजी है। इनपुट और आउटपुट फंक्शन, फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट में भी वही था, थोड़े बहुत चेंजेस थे, बट ठीक है। फॉर्मेटेड मतलब क्या, मैं वो दोनों भी बतौर स्कैनफ और बतौर प्रिंटफ यूज कर सकता हूँ, दैट्स इट, नथिंग स्पेशल। सो आई गेस अपना फर्स्ट चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट है वो सब हो गए। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग फर्स्ट चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है वो देखने वाले हैं, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक से
next chapter.